یا آپ کے سماعتوں کی نظر کرتا چلوں کہ عزادار جب نیت کر کے چلتا ہے کہ مجھے مجلس حسینی میں جانا ہے، فرش عزا پہ جانا ہے، توجہ کیجئے میں کچھ جملوں کو بار بار دہراؤں گا تاکہ اس فرش عزا کی فضیلت، اس عزاداری کا مقصد آپ کے دلوں میں اتارا جا سکے۔ جب عزادار نیت کر کے چلتا ہے کہ میں فرش عزا حسینی پر جا رہا ہوں، تو وہ فرش کے جہاں پر جنت کی مخلوقات آنے کی تمنا کرتی ہوں، یہ عزادار جب آتا ہے، یہ چل رہا ہوتا ہے، تو اس کے ہر قدم پہ خدا کئی ہزار نیکیاں لکھتا رہتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، اس کے قدموں سے اڑنے والی دھول کا بھی بہت بڑا مقام ہے۔ توجہ کیجئے، ایک واقعہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہوں گا۔ ایک مرتبہ ایک ایسے والدین جن کی اولاد نہیں ہو رہی تھی، تھے بہت متاثر، اہل بیت کے دشمن کہہ لیجئے یا نفرت کرنے والے کہہ لیجئے، انہوں نے یہ نیت کی کہ اگر ہمارے ہاں کوئی اولاد ہو گئی تو ہم عزاداروں کا قتل اس سے کروائیں گے۔ توجہ کیجئے گا، یہ خدا کی کرامت ہے۔ اللہ جسے ہدایت دینا چاہے کس طریقے سے در حسین پہ لے آتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، ان کو بیٹا ہو گیا۔ جب وہ بیٹا بڑا ہوا، انہوں نے اس بیٹے کو بتایا کہ بھئی ہم نے یہ نیت کی تھی کہ اگر ہمارا بیٹا ہوا تو ہم اس سے حسین کے عزاداروں کو قتل کروائیں گے۔ اب جاؤ، تم جوان ہو گئے ہو، وہ نیت ہمیں پوری کرنی ہے۔ ایک مرتبہ یہ آیا اور کسی ایسی جگہ پر آ کے بیٹھ گیا کہ جہاں سے حسین کے عزاداروں نے گزرنا تھا۔ بہت توجہ چاہیے، آپ بھی جلوس عزا سے آ رہے ہیں، اکثر مومنین آپ میں سے اس جلوس میں تھے، بلکہ سبھی مومنین اس جلوس میں ہوں گے، اور یہ مجالس عزا، یہ جلوس عزا جو آپ برپا کر رہے ہوتے ہیں، آپ جو چل رہے ہوتے ہیں، ذرا مقام و منزلت کو بھی پہچان لیجئے کہ جب وہ ایک ایسی جگہ آ کے بیٹھ گیا کہ جہاں پہ عزاداروں نے جہاں سے گزرنا تھا اور قریب تھا کہ یہ کوئی حرکت کرتا، نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا، عزاداروں کو انتظار کر رہا تھا کہ کوئی موقع ملے تو یہ کوئی حرکت کرے۔ توجہ ہے، کوئی موقع ملے تو یہ کوئی حرکت کرے، مگر اس سے پہلے کسی کوئی موقع ملتا، اسے نیند آ گئی۔ اب یہ خواب کے عالم میں دیکھتا ہے کہ یہ ثابت کر چکا ہے کہ انسان جو کچھ اپنے منہ کے ذریعے کھاتا ہے وہ خون میں شامل ہوتا ہے اور خون کے ذریعے پورے جسم میں پھیل جاتا ہے۔ اسی لیے اگر سانپ کاٹ لے، کوئی زہریلی چیز کاٹ لے، تو فوراً اس جگہ کو بند کیا جاتا ہے، وہاں پر کوئی گانٹھ لگائی جاتی ہے، کوئی رسی باندھی جاتی ہے تاکہ اس زہر کا اثر خون کے ذریعے پورے جسم میں نہ پھیل پائے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی دوائی لگانی ہو، معلوم نہیں آپ کی توجہات کہاں ہے، کوئی دوائی لگانی ہو تو وہ بھی لگائی جاتی ہے جسم پہ، اسی نیت سے کہ اس کے جسم پہ لگائی جائے گی تو وہ خود بخود خون کے ذریعے پورے جسم میں سرایت کر جائے گی۔ توجہ کیجئے گا، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ درد معدے میں ہوتا ہے، انجیکشن ہاتھ پہ لگتا ہے، درد کسی اور جگہ ہوتا ہے، انجیکشن کسی اور جگہ لگتا ہے، اسی لیے کہ خون کے ذریعے وہ دوا پورے وجود میں سرایت کر جائے گی، پورے وجود میں پھیل جائے گی۔ بھئی اسی طریقے سے جب یہ سو گیا، اس کا منہ کھلا ہوا تھا، حسین کے عزادار گزرے، وہ عزادار جنہیں یہ نقصان پہنچانا چاہتا تھا، ان کے قدموں کی خاک جب اس کے منہ کے ذریعے اس کے جسم میں گئی، خون کے ذریعے پورے جسم میں پھیل گئی، پورے وجود کا حصہ بن گئی، ان فرشتوں نے کہا کیونکہ حسین کے عزاداروں کے قدموں کی خاک اس کے وجود کا حصہ بن چکی ہے، اب نعرے
सकती। इसे नींद आ गई। अब ये ख्वाब के आलम में देखता है कि हशर का माहौल है। तवज्जो चाहिए, तवज्जो। किसी भी मरहले में तवज्जो आगे पीछे हो गई तो फिर मजा नहीं आएगा, बात समझ आना मुश्किल हो जाएगी। लुत्फ तब ही आएगा नतीजे का जब साथ साथ रहेंगे। किसी मरहले में इसको नींद आ गई, ख्वाब में देखता है कि हशर का आलम है, फरिश्तों ने पकड़ा हुआ है और घसीटते हुए लेके जा रहे हैं जहन्नम की तरफ। अब जब जहन्नम में लेकर गए, जहन्नम में डाल दिया तो देखा कि नारे जहन्नम इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही। अब तमाम फरिश्तों ने देखा कि भाई आग है, इतनी झुलसती हुई आग है और इससे कोई नुकसान ही नहीं पहुंचा रही। फरिश्ते एक मर्तबा बाहर लाए, उन्होंने महसूस किया शायद इसके जिस्म पे कोई ऐसी चीज हो जिससे इसको आग असर नहीं कर रही। जिस्म की सफाई की गई, जब दोबारा नारे जहन्नम में डाला गया, देखा कि फिर नारे जहन्नम कोई असर नहीं कर रही। फरिश्ते हैरान हैं, परेशान हैं। जब निकाला गया, लेके आया गया, अब फरिश्तों ने सोचा कि जब जो जन्नत के फरिश्ते हैं वहां लेके जाते हैं, दिखाते हैं कि कहीं कोई ऐसी सिफत तो इसमें नहीं आ गई जो जन्नतियों में हो, जो इसे नारे जहन्नम असर नहीं कर रही। अब आपकी तवज्जुहात का इम्तिहान है, आखिरी बंदे तक तवज्जो का तालिब हूँ कि एक मर्तबा जब इसे जन्नत के फरिश्तों की तरफ ले जाया गया और कहा कि देखो कि इसमें कोई ऐसी सिफत, कोई ऐसी चीज तो नहीं आ गई कि जो जन्नतियों में होती है। जन्नत के फरिश्तों ने देखते ही कहा कि इसके जिस्म के बाहर कोई ऐसी चीज नहीं है, इसके आमाल में फेलन कोई ऐसी खास बात नहीं है, मगर ये इसके मुंह में किसी तरीके से हुसैन के अज़ादारों के कदमों की खाक चली गई है। अब तवज्जो कीजिएगा, मेडिकल ये साबित कर चुका है कि इंसान जो कुछ अपने मुंह के जरिए खाता है वो खून में शामिल होता है और खून के जरिए पूरे जिस्म में फैल जाता है। इसीलिए अगर सांप काट ले, कोई जहरीली चीज काट ले तो फौरन उस जगह को बंद किया जाता है, वहां पर कोई गांठ लगाई जाती है, कोई रस्सी बांधी जाती है ताकि उस जहर का असर खून के जरिए पूरे जिस्म में ना फैल पाए। इसी तरीके से अगर कोई दवाई लगानी हो, मालूम नहीं आपकी तवज्जुहात कहाँ है, कोई दवाई लगानी हो तो वो भी लगाई जाती है जिस्म पे, इसी नियत से कि इसके जिस्म पे लगाई जाएगी तो वो खुद ब खुद खून के जरिए पूरे जिस्म में सरायत कर जाएगी। नाना, अब वो वक्त आ गया। ऐ नाना, अब आपकी उम्मत हमें मदीने में रहने नहीं देना चाहती। ये लश्कर रोते रहे, गिरिया करते रहे, मौला गिरिया कर रहे थे। गिरिया करते करते हुसैन को कुछ देर के लिए अपने नाना की कब्र में नींद आ गई। ख्वाब के आलम में देखते हैं कि नाना रसूल ख्वाब में हाजिर होते हैं, फरमाते हैं ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे फर्जंद, बस बहुत जल्द अब तुम्हारी हमसे मुलाकात होने वाली है। एक मर्तबा ख्वाब से बेदार हुए और आए, अम्मा फातिमा की कब्र पर आए। मेरा दिल कहता है जिस तरह शहादत सैयदा के वक्त जब हुसैन अपनी कमसुनी के वक्त गिरिया कर रहे थे तो बीबी के बंदे कफन टूटे और हुसैन को अपनी बाहों में लेके सीने से लगा दिया। अरे कब्र से तो हाथ बुलंद हो के हुसैन को अपने सीने से लगाया होगा, कहा होगा ऐ मेरे बच्चे जाओ, मगर तुम्हारी माँ भी तुम्हारे साथ होगी। रोज़े हश्र तुम्हारी कत्लगाह को अपने बालों से साफ करूंगी। एक मर्तबा मौला ने जब जनाब सैयदा की कब्र से विदाई हासिल की, वापस तशरीफ लाए, अपनी एक कनीज को कहा कि अब खैमे के, अब घर के दरवाजे पर खड़ी हो जाओ और बीवियों के नाम पुकारो, बीवियों को बुलाना शुरू करो। और हजरत अब्बास को हुक्म दिया, ऐ अब्बास अमारियों को तैयार कीजिए, बीवियों को अमारियों में बिठाना है। तमाम बीवियां आने लगी, सब बीवियों के नाम लेना शुरू किए। जब नाम आया, ऐ उम्मे फरवा तशरीफ ले आइए, बीबी तशरीफ लाने लगी तो मौला हुसैन ने कहा है कासिम, बेटा अब्दुल्ला खड़े हो जाइए, जरा मादर गिरामी को सवार कराइए। जब जनाब उम्मे कुलसूम आई तो मौला हुसैन ने हजरत अब्बास को हुक्म दिया,
जला लाया। इमाम ने फरमाया या अय्युहा यब्न ज़रका, ऐ नामकार के बेटे, तू मुझ हुसैन को कत्ल की धमकी देता है। बस हजरत अब्बास का सुनना था, आखिर खैबर शिकन का बेटा था, बाजुओं में वही कुव्वत हैदरी थी। वो दरवाजे जो मरवान ने बंद कर रखे थे, अपने एक बाजू की ठोकर से वो दरवाजा तोड़ दिया और अंदर दाखिल हुए। मौला को चारों तरफ से तमाम जवानाने बनी हाशिम ने घेर लिया। अब कोई मंजर याद आ रहा है, आज मरवान के दरबार में सिर्फ कत्ल की धमकी पर अब्बास ने अपने शाने से वो दरवाजा तोड़ दिया, मगर कुर्बान इसी बाजू पे। कल जब रोज़े आशूर ये कट जाएगा, आज जब हुसैन को कत्ल की धमकी मिली तो मौला को चारों तरफ से बनी हाशिम के जवानों ने घेर लिया, मगर कल जब मौला सीट पर सवार होना चाहेंगे, एक मर्तबा दाएं देखेंगे, एक मर्तबा बाएं देखेंगे, एक मर्तबा फरमाएंगे मेरे बनी हाशिम के जवानों कहां चले गए, कोई ना आ पाएगा। एक मर्तबा जब ये मंजर खत्म हुआ, मौला वापस घर आए। अब कहा अब्बास एक फहरिस्त बनाओ, अब हमें सफर करना पड़ेगा, हमें कयाम करना पड़ेगा। अब नाना की उम्मत हमें मदीने में नहीं रहने देना चाहती। एक मर्तबा जब फहरिस्त बनना शुरू हुई, जब जनाब अली अकबर का नाम आया, जब जनाब कासिम का नाम आया, तमाम वो असहाब जो करबला के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मुअय्यन करते चले गए, मौला तायीद करते चले गए, बीबियों के नाम मौला लेते चले गए, हजरत अब्बास फहरिस्त तैयार करते चले गए। एक मर्तबा जब हजरत अली असगर का नाम आया, एक बीबी ने सवाल किया, बाबा बाबा मेरा असगर बहुत छोटा है, ये करबला में कैसे जिहाद करेगा। मेरे मौला एक मर्तबा जब उस नन्ही बीबी ने हजरत अली असगर को अपने हाथों में ले लिया, एक मर्तबा मौला खुद जनाब अली असगर से मुखातिब होकर फरमाते, आए असगर अगर आप करबला ना गए तो हुरमला का तीर कौन खाएगा। बस अज़ादारों, एक मर्तबा जब फहरिस्त तैयार हुई, अब हुसैन ने विदा का इरादा किया। एक मर्तबा मौला हुसैन अपने नाना की कब्र मुक़द्दस पर गए, फरमाया नाना अब वो वक्त आ गया, ऐ नाना अब आपकी उम्मत हमें मदीने में रहने नहीं देना चाहती। ये लश्कर रोते रहे, गिरिया करते रहे, मौला गिरिया कर रहे थे। गिरिया करते करते हुसैन, तो मौला हुसैन ने हजरत अब्बास को हुक्म दिया, अब्बास आइए और बहन को सवार कराइए, बस आपकी ज़हमतें तमाम होने वाली हैं, अब गिरिये में बखौल न करना बिल्कुल भी। जब जनाब ज़ैनब का नाम आया, जनाब ज़ैनब आइए, अब अमारी में सवार हो जाइए। जब किसी माँ का नाम आता, मौला उनके बेटे को पुकारते कि आइए और सवार कराइए। जब किसी बहन का नाम आता, मौला भाई को पुकारते, आइए और बहन को सवार कराइए। जब जनाब ज़ैनब का नाम आया, मौला ने हस्ब मामूल आवाज दी, अब्बास अब्बास आओ, ज़ैनब को सवार कराओ, अकबर बेटा आओ, अम्मा ज़ैनब को सवार कराओ। जनाब अली अकबर की परवरिश ज़ैनब ने की थी। जनाब अली अकबर जनाब ज़ैनब को मौला गिरामी के लक़ब से ही पुकारा करते थे। मौला फरमाते अकबर आइए और अब्बास के साथ अम्मा ज़ैनब को सवार कराइए। लेकिन मौला देखते हैं कि जनाब ज़ैनब तशरीफ नहीं ला रही है। एक मर्तबा मौला अपनी जगह से खड़े हुए, जाके पूछते हैं बहन ज़ैनब आपने आज तक मेरे हुक्म की तामील की है, आज क्या हुआ है, आपको सदाएं दे रहे हैं, आप तशरीफ नहीं ला रही, क्या मुझसे सवार होना चाह रही है। आइए मैं हुसैन आपको अमारी पर सवार